أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں. تو ذرا بورڈ کے جی اسکرین کی سر، طرف آ دیکھیے. رہی ہے الحمدللہ. ہاں، اسکرین کی جانب ذرا دیکھیے. آج ہم تھوڑا سا ایک نیا سبق شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ واپس آئیں گے اس کو، کیونکہ جملہ اسمیہ کی بہت بار ذکر ہو رہا ہے. تو عربی زبان میں جملوں کی دو تقسیم ہے. ایک تقسیم کیا ہے؟ ایک حصہ ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ یہ نام سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے. اس کا پہلا جز اسم ہوگا. اسم ایک ٹاپک ہوگا، کسی ٹاپک کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اس کے متعلق جو معلومات دی جاتی ہے اسے خبر کہتے ہیں. تو جملہ جو شروع ہوتا ہے اسم سے اس کا نام ہے مبتدا. اور جو مبتدا یعنی ٹاپک آف دا سینٹینس، ٹاپک، اور ٹاپک کی جو معلومات دی جاتی ہے اس کو اطلاع یا خبر کہتے ہیں. اور اس میں ایک اور ایک جز آتا ہے متعلق بالخبر، وہ ہوتا ہے مرکب جاری. تو یہ تمام چیزیں مل کر ہم لوگ پڑھیں گے. جملے اسمیہ کی تعداد قرآن میں 30 سے 35% ہے. 30 سے 35% اس نوعیت کے آتے ہیں. تو بولیے جملہ اسمیہ آپ کے کیا کیا جز ہے؟ 3. سب سے پہلے جملہ اسمیہ اسم یعنی ناؤن سے شروع ہوگا، اس کا آغاز اسم سے ہوگا. یہاں دیکھ رہے آپ ٹرین، تو پہلے جو آئے گا انجن وہ اسم رہے گا اور اس کا نام ہے مبتدا. مبتدا یعنی ابتدا. ابتدا کس سے کریں گے؟ ہم ناؤن سے کریں گے. اور ابتدا کرتے تو کیا ہوگا؟ ٹاپک رہے گا، کسی کے بارے میں بات کر رہے اس کا نام ہوگا. اور خبر کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں اطلاع ہوگی. ایگزامپل، ہم نے کہا حامد ہے ایک طالب علم. تو اس میں ٹاپک کس کا ہے؟ حامد کے متعلق بات کر رہے ہیں. اور ہے ایک طالب علم اس کی خبر ہے. حامد ہے ایک طالب علم، یہ دو چیزوں کو لے کر بنائے ہم نے. حامد طالب، تو یہ بنے گا جملہ اسمیہ. اور پچھلے 5 دن سے میں لگاتار یہ بتاتے جا رہا ہوں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر زیادہ تر 99.8% یہ نکیرہ ہوتی. میں ریپیٹ کرتا ہوں، مبتدا کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ، ڈیفینیٹ. اور خبر کیا ہوگی؟ نکیرہ، انڈیفینیٹ. تو اس کا ایگزامپل میں نے بتایا حامد. حامد یہ اسم علم ہے اور معرفہ ہے. اور خبر طالب ہے. طالب ایک نکیرہ اسم ہے. تو انگلش میں بنے گا یہ حامد از a student. دونوں کی اعرابی حالت ہوگی رفع. حامد پہ 2 پیش ہے تو لفظاً ہم بتا رہے ہیں کہ حامد رفع میں، اور طالب بھی لفظاً ہم اس کا تلفظ کر رہے ہیں ان کے جیسا
तो दोनों दफा में। चलिए आगे चलें। अच्छा, कोई आपको सवाल है तो अभी पूछिए, क्योंकि लोग आने में 1 2 4 मिनट लगते हैं। तो ऑनलाइन में जो भी लोग हैं वो सवाल करेंगे। क्या मेरी सबको आवाज आ रही है? सब लोग जरा जोर से सलाम करो। कौन को कितने लोग हैं मालूम थे मेरे को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, तो मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है। तो ये जी एक नया जुमला सीख रहे हैं हम। एक अस्सलाम नया जी जुमला सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम। इसके पहले हमने जुमला फेलियर थोड़ा सीखे थे, जो फेल से शुरू होता है। जी तो उसके अंदर एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं। जहाबा हामिद। जहाबा ये वर्ब है, काम है। जहाबा हामिद का मतलब है हामिद गया। तो वो था जुमला फेलियर। अब मैं बताने लगा हूं जुमला इस्मिया, क्योंकि मुरक्कबात का इस्तेमाल जुमला इस्मिया में बहुत जोरदार तरीके से होता है। इसलिए थोड़ा जुमला इस्मिया पढ़कर मुरक्कबात फिर हम अगले हफ्ते कंप्लीट करेंगे। तो हमें जुमले में डालना है। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं आपके सामने, एक ट्रेन की तस्वीर है, और ट्रेन का पहला हिस्सा इंजन है। तो जुमला इस्मिया का पहला हिस्सा होता है मुब्तदा, और मुब्तदा हमेशा इस्म होता है। हर हमेशा इस्म होता है। मुरक्कब भी हो सकता है, क्योंकि मुरक्कब में भी इस्म होते हैं। तो हमने बताना है इस्म जो है हमारा जुमले का टॉपिक है, और टॉपिक के बारे में बताना है। उसे जो इत्तला देते हैं वो इस्म के मुतालिक उसे खबर कहते हैं। खबर यानी मालूमात, इत्तला। और उसकी दीगर मालूमात देना, उसकी डिटेल देना है। तो फिर हम बताएंगे एम बी के लिखा मैंने, एम बी के मुताल्लिक़ बिल खबर। बोलो, मुताल्लिक़ बिल खबर बताया जाता है मुरक्कबे जारी से। मुरक्कबे जारी क्या करेगा? मुताल्लिक़ बिल खबर बनाएगा। तो मैं आपको एक जुमला बना के बता रहा हूँ। हामिदुन, बोलिए, तालिबुन फिल मदरसती। हाँ, तो क्या बोला मैंने? हामिद। तालिबुन क्या है? आपको नकीरा दिख रहा ना, तो इज आ जाएगा, है आ जाएगा। हामिद है एक तालिब इल्म मदरसे में। तो मुताल्लिक़ बिल खबर क्या है? खबर के मुताल्लिक़ दीगर मालूमात दी जा रही है। तो पूरा जुमला क्या बनेगा? हामिद है एक तालिब इल्म, कहाँ है भाई? मदरसे में। तो जुमला बनाइए। हामिदुल, हामिद बोलो मुझे, मारिफा है कि नकीरा? वो मुब्तदा। हामिदुल नकीरा कैसा है भाई? रखा हुआ नाम है ना, मारिफा है। मारिफ और अब तालिबुन क्या है? नकीरा है कि मारिफा है? नकीरा। नकीरा। कोई तो भी एक स्टूडेंट। तो जब भी मारिफा के पीछे नकीरा इसम आता है तो क्या बनता है? जुमला इसमिया बनता है। और उसके दरमियान में क्या लगाना पड़ता है? उसमें है। अच्छा, इतना बोले तो भी जुमला हो जाएगा, हामिद है एक तालिब इल्म। लेकिन और अच्छा बनाना है जुमला, आइडियल जुमला बनाना है, तो उसके मुताल्लिक में कोई खबर में और इजाफा करेंगे। हामिद है एक तालिब इल्म मदरसे में। तो बनेगा मदरसे में, कल सीखे थे ना अपने, में का मतलब फी। और मदरसा क्या होगा? मदरसुन था, तो मदरसिन हो जाएगा। ठीक है, चले आगे चलते बताता हूँ। तो जरा सा आप नोट्स लिखे।
आपको याद होगा जुमला बनाने के लिए क्या होना, अल्फाज चाहिए। क्या चाहिए? अल्फाज। और अल्फाज में से मुकम्मल मायने निकलना चाहिए, तो उसे बोलेंगे मुरक्कबे ताम। और अल्फाज लेकर उसमें से मायने नहीं निकले तो क्या बोलेंगे? नाक़िस। ये जरा उर्दू वालों के लिए, जिसको नहीं आती उर्दू ग्रामर, वो लिख ले समझ ले तो आपके लिए बेहतर होगा। अरबिक में कितने किस्म के जुमले जरा देखिए। जुमले इस्मिया, जुमले फेलिया। हाँ, जरा जुमले इसमें जोर से पढ़िए, जुमले इस्मिया। नीचे पढ़िए। मोहम्मदुन तालिबुन। हाँ, तो ये जो इसमें अलम है मोहम्मदुल, वो मारिफा है, और उसके पीछे कौन आ रहा? तालिबुन। तो नकीरा। तालिबुन नकीरा है, तो मारिफा के पीछे जब नकीरा लगाएंगे तो नकीरा से पहले माकबल है लगाना है। बढ़िया। हामिद है, अपना मोहम्मद है एक तालिब इल्म। आया समझ में? जी। तो जुमला इसमिया बनाने का ये तरीका है। पहले क्या आएगा? इस्म आएगा। मारिफ। उसके बाद है कि इसम आ सकता है, कोई भी चीज आ सकती है, जैसे जैसे चीजें आएंगी जैसा जैसा बनेगा आपको बताते जाऊंगा। तो ये है जुमला इस्मिया। और इधर हम पढ़ के आए हैं जुमला फेलिया। जरा देखिए, जा मोहम्मद, जा के मतलब है आया। कौन आया? मोहम्मद आया। तो ये जो जुमला है फेल से शुरू हो रहा है, ये जो जुमला है इसम से शुरू हो रहा है। जो इसम से शुरू होता है उसे जुमले इस्मिया कहते हैं, जो फेल से शुरू हो रहा है उसे जुमला फेलिया कहते हैं। खत्म। अब यहां पर आपके सवालात है तो जरूर पूछिए, बहुत पूछिए। तो कुरान में कितने जुमले हैं भाई? दो, जुमले इस्मिया और जुमले फेलिया। तो जुमले इस्मिया तकरीबन 65 से 70% है। सॉरी, जुमले फेलिया 65 से 70% है। जुमले इस्मिया 30 से 35% है। तो दोनों की पढ़ाई करना इंतहाई जरूरी है। तो आप क्या कीजिए, आपके पास लिख लीजिए। जुमले की दो किस्में होती है, एक को कहते हैं जुमले इस्मिया, दूसरे को कहते हैं जुमला फेलिया। यहां तक ठीक है क्या भाई? बोलो मेरे को हाँ या ना बोलो। जी सर, समझ गया। ये जुमला ये जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया की तरतीब मैंने लिखा। तो जुमला फेलिया देखिए, पहली ट्रेन जो दिख रही जुमला फेलिया, उसमें ईजल लाल रंग का है, वो शुरू हो रहा फेल से। फेल के बाद क्या होता है? करने वाला। फेल यानी काम। उसके बाद काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल। उसके बाद क्या कहते हैं? मफऊल। और इसमें भी मुताल्लिक बिल फेल मजीद मालूमात दे सकते हैं। तो चलो हम फेल की जगह पे एक चीज रखेंगे, दरबा। बोलो, पीटा। काम हुआ ना? पीटने का काम हुआ। दरबा हामिद, हामिद ने पीटा। अब जिसके ऊपर जुल्म हुआ उसको मफूल में डाल दो, जैदन। कहा मारा जी उसको? फेल वही थी। फिर आ गया तुम्हारा कौन सा? माँ, मुरक्कबे जारी। मुरक्कबे जारी बहुत ज्यादा लगता है। फिर से भरो, उसमें फेल में भरो। दरबा हामिदुन जैदन फिल बैती। हामिद ने मारा जैद को घर में। आया समझ में? ये आइडियल जुमला है। ये बिल्कुल ऐसे मालूमात देंगे तो आदमी के पेट भर के मालूमात मिलती है उसको। तो फेल के बारे में हम सीखे, थोड़ा सा बाजू रखेंगे उसको। अभी जरा सा इसको भी सीखते हैं। जुमले इस्मिया का इंजन नीचे देखो, नीचे दिख रहा है आपको? देख रहा था? हाँ, ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है, ये इंजन को शुरू कर रहे हैं हम इसम से, मुब्तदा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
और मुब्तदा का मतलब सेंटेंस का टॉपिक, और उसकी मालूमात दो। हामिद है एक तालिब इल्म, बोलो हामिदुन तालिबुन। कहाँ है भाई? फिल मदरसा थी। हाँ, ये भी बन गया आइडियल जुमला। ये दोनों ट्रेन आपको संभाल के रखना है। आप जरा देखो, ले लो क्या कहने दे, बात तो देता मैं सब। ये जब जुमले इसमें शुरू हुआ ना, हाँ लिखे लो, लिख लो। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये तरतीब है, एक पूरा ख्याल है। पूरा ख्याल की वजह से अगले वाले को पूरी समझ में आती है, इसलिए जुमला है। ऊपर में जुमला फेलिया है, नीचे का जुमला इसलिए है। अब सर आप बताएंगे कि जो लिखा मैंने ये जुमला इसलिए है कि जुमला फेलिया है, बताओ क्या है जुमला पहला? इसम। हाँ, अल लिख रहा है, किताबो दिख रहा है, मारिफा है, इसमें दिख रहा था भाई। और आगे क्या है भाई? जदीदुन क्या है? हाँ, ये उसकी नकीरा है। मालूमात है। बस और नकीरा है, तो दोनों के दरमियान क्या लगाएंगे उर्दू में? है का दो। किताब है नहीं। नहीं। इस तरह क्या बनेगा? जुमला इस्मिया बनेगा। इस तरह लैंग्वेज में कंप्लीट सेंटेंस मुरक्कब ताम बन गया। बनाने के लिए सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के रिलेटेड न्यूज यानी प्रेडिकेट बताए, ये जरूरी है। इसम बताएंगे तो उसको मुब्तदा कहेंगे, और उसकी मालूमात देंगे तो उसको खबर बोलेंगे। तो जुमले इस्मिया के कितने जुज है? दो। अहम जुज कौन से? दो। पहला क्या है? मुब्तदा। दूसरा क्या है? खबर। खबर। तो मुब्तदा कैसा हो? मुब्तदा मारिफा हो। खबर कैसी हो? मारिफा हो। मारिफा कैसा पहचानेंगे? इसम के आखिरी हर्फ पर पेश या दो पेश दिखेंगे। इस दोनों में भी दो पेश दिख रहे हैं, पहले पे एक पेश है, दूसरे में दो पेश है, तो दोनों रफा है। अलबत्ता एक मारिफा है, दूसरा नकीरा है। अच्छा, ये वाहिद ही की जमा है बयान किताबों। वाहिद। वाहिद, उसकी खबर कैसी होंगी? वाहिद होंगी। तो जदीद उन भी वाहिद है। अच्छा, ये मुजक्कर है कि मुअन्नस है भाई? अल किताब मुन्नस। मुजक्कर किताब है। मुजक्कर मुजक्कर। मुजक्कर। हाँ, और जदीद उन मुजक्कर है कि मुअन्नस है? नहीं। मुजक्कर है। मुजक्कर। तो ये दिन पे जब जुमला इसलिए बिठाएंगे तो तीन चीजें मुताबिक खत पे आएगी। कौन सी आएगी जरा बताओ मेरे को। तीन चीजें बैलेंस में आएगी, दोनों में बराबरी। मारिफा। रफा हाँ, नहीं हालत। नहीं, रफा हाँ, नहीं। रुको हालत बेटा, रफा। रुको बेटा, मैं अपन लिखे देंगे ना सबके लिए, सबके लिए। रुको बेटा, रुको। हाँ, तो यहां हमने लिखे DING। चलो इसको चेक करो पहले। डी यानी कि क्या है भाई? ये मारिफा है। किताबो क्या है? मारिफा है। आय के हिसाब से क्या है भाई? ये पेज दिख रहा ना वो, रफा हालत। अच्छा, ये रफा हालत। नंबर के हिसाब से देखिए वाहिद, और जींस के मुताबिक मुजक्कर है। तो ये किताब के बारे में अपन ने पूरा लिख दी। अब हमको लिखना है जदीद के बारे में। हाँ चलो, जदीद को चेक करो। ये मारिफा की नकीरा है। हाँ, मारिफा। ये नकीरा अल है क्या? इसको नहीं है ना, तो ये नकीरा है। ठीक है। अच्छा, बाकी की चीजें जरा गौर करो। एराब क्या है भाई? रफा। मैदान की बनने है। अच्छा, ये वाहिद है कि जमा है कि तस्निया है? वाहिद। और ये मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुजक्कर। चलो जोड़ियां लगाओ। ये दोनों जोड़ी बराबर है, ये दोनों जोड़ी बराबर है, ये दोनों जोड़ी बराबर है। ये बराबर नहीं है।
जुमला इस्मिया का ये रूल है। क्या रूल है? मारिफा नकीरा, मारिफा बाकी सब नकीरा, हाँ जुमला तीनों इसमें चीजों मारिफा में नकीरा। मुताबिकत होना, बाकी तीनों चीजों में क्या होना? हाँ। कोई सवाल यहाँ पर? बिल्कुल पक्का हो गया। हाँ नहीं, वही पढ़ाते मैं बनाते बनाते ला रहा हूँ, अचानक डाल दिए बम तो नहीं आता। अच्छा, अब एक खास बात लिख के रखना, ये क्या है? नकीरा है ना, ये है कि नहीं? बोलो, नकीरा है। ये रूल टूटेगा एक बार। अच्छा बच्चों, नहीं मुझे एक बात समझ में नहीं आता, हम कुरान की जुबान सीख रहे हैं और आप माइक शुरू करके चिल्लाते चीखते रहते, अच्छा है क्या? थोड़ा ख्याल है। हाँ, एक रूल है तो ये जाब्ता तोड़ेगा वो, एक्सेप्शन है। तो ये जो दिख रही है हमेशा 90% टाइम ये क्या रहेगा? नकीरा रहेगा। 10% टाइम नकीरा नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा? जब यहां पर कोई क्या रहेगा? खबर में कौन बैठेगा? हाँ, अब जरा देखिए, आप बना के बताते हो, बोलो। अल किताबु जदीद, जदीद, ये तो रूल में बैठ रहा। अब बोलो, किताब है टेबल पर, बोलो। अलल मक्तबी। अब दो लोग आ गए ना, दो लोग आ गए, तो वहां पे आपको कहा है, अब दिख रहा अलल मक्तबी, ये तो एक ग्रुप बन गया, एक कंपाउंड है ये, तो उसका एरब समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? आ रहा क्या समझ में? बोलो, आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। लेकिन उन्हें कहां बैठा? खबर में बैठा। कहां बैठा उन्हें? तो बोलो, महल्ली रफीन, मोहल्लन रफी उन्हें किसकी जगह बैठा? खबर के जगह पे उसको बिठाए, तो उन्हें बोला भाई मैं खबर की जगह पे बैठा हूं, वो इसलिए मैं वो क्या बोले सब रफा। अब आप जो है एमबीबीएस डॉक्टर है ना? लेकिन कहां बैठे हुए हैं? अरबी के क्लास में तो इसलिए स्टूडेंट है, असली क्या है? डॉक्टर है। अभी का बैठे है, स्टूडेंट है। तो महल्ली का मतलब जगह के हिसाब से, ये जगह किसकी है? खबर की। खबर की जगह बैठेगा तो बोलना उन्हें तो रफा रहती है हमेशा, तो तू भी रफा है। क्लास में बैठा है तो तू स्टूडेंट है, डॉक्टर घर पे। जम गया? यही है दीगर इल्म इसका, पढ़ाई। इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता इसको। ये 4 दिन से मैं ढकल के यहां ला रहा। जगह है खबर की, तो उन्हें खबर क्या रहती? रफा रहती। खबर रफा दिखती, जदीद रफा। तो जब उसकी जगह पे अलल मकतबी भी आए तो बोला भाई मुरक्कब है उन्हें, लेकिन ऐराबी हालत जगह के मुताबिक रफा है। बोलो, महल्ली महल्लन रफा। अब क्या है यहां पे? लफ्जन रफा। माशाअल्लाह, यही बताने वाले को बड़ा होशियार समझा जाता। हाँ, क्योंकि हम एराब से खिल लेते आ रहे दम दम से, कभी जहां पे समझ रहे थे मुरक्कबात के एराब को समझे तो है कुछ। जम गया? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों में सवाल करेंगे, जो कुछ भी पूछना है बेफिक्र खुले दिल से बेलौस पूछो। ठीक, अभी बहुत एग्जाम्पल इसके 500 पेज, आप पागल हो जाना पढ़ते पढ़ते। लेकिन मैंने क्या करा, उसके अंदर क्या है बता दिया आपको, उसकी रूह क्या है। क्या रूह है? दो जुज होते हैं, देखो, दो जुज होते हैं। पहले वाला मारिफा मुब्तदा और नकीरा खबर, फिर ऐराबी हालत में दोनों रफा।
अब यहां पर अगर अकेला है तो ठीक है, रफा मिलेगा, लेकिन मुरक्कब आए तो कैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो मुरक्कब को क्या बोलेंगे आप? जगह के मुताबिक उन्हें रफा है। सारे मुरक्कब को बोलेंगे, सारे मुरक्कब बोले, सारे मुरक्कब को बोले, पूरे को मिला के एक यूनिट बन गया ना। वो कंपाउंड को बोलेंगे हालत रफा में है। वो अंदर में है, उन्हें मजरूह। अंदर में तुम डॉक्टर है, अंदर में तुम डॉक्टर है, यहाँ पे तुम स्टूडेंट है। वो पूरा एज ए यूनिट आपने एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर करे, होल स्क्वायर के अंदर बैठे वाला तो पूरा अंदर ही रहेगा ना। बोलेंगे तो सब निकलेंगे दुनिया। डब्बे में बैठा है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब यही चीज को मैं आपको, अभी तो आया नहीं, वो सब जब आएगा जब आपको आराम से बताऊं। फिलहाल ये समझो क्या बोला मैंने भाई, 100% में से 90% टाइम खबर वाहिद होगी। देखो यहां पे क्या है, वाहिद है। तो वाहिद खबर दिखी तो दो चीज होना, नकीरा होना, रफा होना। अगर वाहिद ना हो, मुरक्कब हो, तो फिर वो उसका डिसाइड करना पड़ेगा आपको यार, क्योंकि उस जगह पर वो डब्बा बैठा है, डब्बे में मुरक्कब बैठा है। तो वो जगह के हिसाब से वो रफा है, या ऐसा मुतय्यन करते। समझ गया? चलो आगे बढ़ते। ये रूल पढ़िए भाई, नोट से पढ़िए, अब ये एकदम साफ हो जाएगा। जुमले इस्मिया बनाते वक्त इन उसूलों का ख्याल रखना जरूरी है। कौन सा उसूल है? पहला, मुब्तदा आम तौर पर पहले आता है, इंजन, और खबर उसके बाद आती है। ये डन हो गया। पहला मुब्तदा फिर खबर, हामिदुन तालिबुन है। नंबर दो, मुब्तदा और खबर हमेशा हालत रफा में रहना जरूरी है। डन? दो चीज समझ में आ गए। नंबर तीन, मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है और खबर नकीरा होती है, अमूमन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पढ़ो, मारिफा नकीरा, ये मैं पढ़ाते हैं। अब पढ़ो, मुब्तदा और खबर जिन्स, जेंडर और अदद के हिसाब से मुताबिकत में होती है ना। मर्द रहेगा तो उसकी खबर भी मर्द रहेगी ना, वाहिद की खबर वाहिद रहेगी। आया समझ में? चलो यहां से, मुब्तदा हमेशा इस्म होता है, ये तो जुमला इसमें है, और खबर कभी इस्म और कभी पूरा जुमला भी हो सकता है, और मुरक्कब भी हो सकता है। बोलो खबर क्या हो सकती है? हाँ, हाँ, पूरा खोल सकते हैं अपने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, खबर बन गई, तो जुमला बन गया। और छोटा कर दिए तो खबर कौन कौन बन सकती है? एक इसम बन सकता है, मुरक्कबत बन सकता है, नाकिस, या पूरा जुमला बन सकता है। होशियार लोग ये याद करें। अच्छा, नंबर 6 बोलो, मुब्तदा अगर जमा मुकस्सर हो। हाँ, याद करो, याद करो, जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर कौन सा? गैर आखिर। खबर क्या हो जाएंगी? औरत बन जाएंगी सिंगल। तो पूरा जो पढ़ने वाले हम, ये पूरा जो टॉपिक है 1 महीने का है, वो 1 महीने की उसकी रूह है। ये रूह पकड़ लिए तो फिर आप जो है ना उसको ऐसा हलवा पूरी की जैसा खा लेंगे। अगर मैंने डॉक्टर साहब आपको नहीं पढ़ाया है, पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ा, आप खुद ही आ जाता इसमें। चले, इस तरह पढ़ने वाले हम मुश्किल से आसान से मुश्किलों तक जाएंगे।
आपको क्या क्या देखो यहाँ पे नोट्स बनाना है, पूरे लिखे हैं। एक चीज देखो, मुक्तदा वो इसम है जिसके बारे में कुछ बताया जाए, टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। हाँ, इसको मुक्तदा इसलिए कहते हैं कि जुमला शुरू उससे होता है। आसान। आगे डेफिनेशन, मुक्तदा इंग्लिश में सब्जेक्ट, एक नाउन होता है जिसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहां पे एग्जांपल देखो, लड़का, लड़का एक इसम है। अब वाला तो नहीं है, ये वाला तो आएगा। अरे भाई आप किसकी इत्तला देंगे, खास आदमी की देंगे, अनजान आदमी की कई इत्तला देंगे। रास्ते में एक आदमी मिला, एक लड़का मिला जिसको आप जानते ही नहीं। हाँ, तो अगर आप एक लड़का खास बताएंगे तो कौन बोलेंगे, अल वाला दो, दिख रहा अल वाला दो मुज्तहिदुन, मेहनती है। बोलो, एक लड़का है मेहनती। कौन सा लड़का है, खास लड़का है जिसको आप जानते हैं। इसलिए मुब्तदा क्या होगा, मारिफा। और खबर क्या होगी, कौन सी क्वालिटी का मेहनती मालूम नहीं अपने को। अब बोलो, लड़का है डॉक्टर, बोलो अल वाला दो तबीबुन, हमको क्या मतलब गायनाकोलॉजिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई तो भी एक डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है। आप समझ में आया, लड़का है मेहनती, द बॉय इज हार्ड वर्किंग। तो द बॉय कौन है भाई, मुब्तदा, जिसके बारे में कहानी सुना जाए। फिल्म में जाते ना आप, फिल्म देख के आते ना, क्या पूछते हीरो कौन है, तो बोलते वो अमिताभ बच्चन है। तो फिल्म में नाम क्या है उसका, विजय। क्या करता उन्हें, गुंडों को मारता, खबर है। एक अहम किरदार को मुब्तदा बनाते हैं, उसकी इतला क्या बनाते हैं, खबर। फिल्म की स्टोरी क्या है, खबर। हीरो कौन है, अमिताभ बच्चन। ओ, आया समझ में, आसान। चलो आगे आओ। खबर वो लफ्ज है जिसके जरिए मुब्तदा के बारे में मालूमात देते। हीरो कौन है, अमिताभ बच्चन। नाम क्या है, विजय। करता क्या है, गुंडों को मार रहा। हो गया खलास। इंग्लिश बोलो, मुब्तदा कौन है, सब्जेक्ट। खबर क्या है, प्रेडिकेट। खलास। तो ये सारी चीजें आपको दी जाएगी। अभी फिलहाल हम टॉपिक पे चलेंगे। तो जुमले की दो किस्में हैं। एक किस्म क्या है, फेलिया। फेलिया कैसे चालू होता है, वर्ब से। इसमिया कैसे चालू होता है, इसम से। नाम ही बता रहे आपको, इसम वाला जुमला है, फेल वाला जुमला है। अच्छा, दो पार्ट होते हैं इसके, जुमले इसमिया के। क्या क्या होते हैं भाई, मुब्तदा, खबर। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। बोलो, दरबाहा में गल, आएगा मिल गया, काम और एक्शन करने वाला फेलियर में। इधर क्या है, हीरो, उसकी तारीफ। अब इसमें एडजेक्टिव लगा सकते हैं, क्या क्या के लगा सकते हैं, देखो पढ़ेंगे, बोलो पढ़ो, पढ़ो ना। हाँ, ये लड़का कैसा दिख रहा है जी आपको, छोटा है ना। तो लड़का छोटा, आप जानते तो बोलिए छोटा है ना, मालूम नहीं तो नहीं बोलेंगे ना, इसलिए अल वलद। और छोटा कैसा होगा, असगीरो। ये जुमला है, असगीर। ये जुमला है नहीं है, मुरक्कब है ये। कौन सा मुरक्कब है, तौसीफी। अभी अब तक मौसम सिफत नहीं लेना है। चलो पढ़ो। जुमला इस्मिया की क्या क्या बातें होती है, ये एक फार्मूला आपको सही बता रहा है। ये जुमला इस्मिया है, तो ये कौन है, मुब्तदा। ये कौन है, पढ़ो। खालिदुन,
तो चेक करो, मुब्तदा कौन है, खबर कौन है। भाई माइक बंद करो जी, सताओ मत मेरे को। ये देखो खालिदुन क्या है, मारिफा है, क्यों भाई, इसमें अलम है। और मुस्लिमुन क्या है, नाम है, नकीरा है। अच्छा तो ये क्या है, रफा। तो बरा मिल गया, वसत मारिफा नकीरा, ऐराब रफा रफा, जेंस मुजक्कर मुजक्कर, अदद सिंगल सिंगल। उर्दू पढ़ो। हाफिज साहब ये माइक वाले को बंद करो। समझ में आ गया आपको, مرفوع पढ़िए। अब ये पढ़ो खालिदुन, बोलो खालिदुन मुस्लिम, ये क्या है पढ़ो। ये फिर से मुरक्कब है, कोई भी मुरक्कब है आतफी, मुस्लिम कंजंक्शन फ्रेज। हाँ अब करो, ये दोनों मिलकर मुब्तदा बन रहा, खालिद और हामिद दो मुसलमान हैं। यहाँ पढ़ो खालिद और हामिद और जैद, हो गया। इंग्लिश बोलो, खालिद इज अ मुस्लिम, खालिद एंड हामिद आर टू मुस्लिम्स, खालिद हामिद एंड जैद आर मेनी मुस्लिम्स। यहां जाओ फिर से चेक करो इसको, मुसद क्या चाहिए, मारिफा नकीरा मिल गया, ठीक है। रफा रफा, जेंस मुजक्कर मुजक्कर, अदद वाहिद वाहिद। पहले दूसरे में आओ, ये भी मारिफा ये भी मारिफा, सब मिलके मारिफा, और ये नकीरा। ये दोनों क्या है अरब में, रफा रफा, और ये आनी रफा, और ये जींस में भी मुजक्कर है सब, ध्यान दो। 1 2 3 ऑल मारिफा, और ये जमा भी मारिफा, ऊना ईना ईना रहेगा तो नसब और जर में चल जाता, लगने लगा अंदाजा। अंग्रेजी में क्या नहीं है, अपना अरबी में क्या नहीं है, हाफिज साहब बोलेगा। टू बी के फॉर्म्स नहीं, हैमिजा नहीं, वॉज़े नहीं, तो अपने को वहां पे अपने को जो है मारिफा और नकीरा में क्या डालना पड़ता। मुरक्कब क्या है मालूम होगा आपको, ये बताने की जरूरत है, क्या रहता मुरक्कब, इनकम्प्लीट सेंटेंस नाफिज, मुरक्कब ताम कंप्लीट सेंटेंस, ये बताने की जरूरत नहीं, आपको अच्छा पढ़ा है। चलिए जुमला इसमें के मुताबिक पढ़िए। पहला टुकड़ा क्या है, मुब्तदा। मुब्तदा नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आता शुरू में, और शुरू में आता, अच्छा, बहुत कॉमनली मुब्तदा कम्स फर्स्ट इन द जुमला, कैन आल्सो बी कॉल्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। खबर क्या है भाई, खबर ये मतलब है न्यूज। अच्छा इसी को खबर कहते हैं, इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। ये दो पार्ट, जरा पढ़िए सब लोग ऑनलाइन वाले, माइक खोल के पढ़ो, सवाल आप करो। अरबिक में लिंकिंग वर्ब एम इज आर नहीं है क्या, आपके जेब में से डालना पड़ते। अब जरा पढ़ो, द स्मार्ट स्टूडेंट, ये जुमला है या फ्रेज, इज है क्या नहीं है, हाँ इज नहीं है तो ठीक है। द स्टूडेंट स्मार्ट बोले तो फ्रेज हो गई, द स्टूडेंट इज स्मार्ट बोले तो जुमला होगा। अब जरा पढ़ो, और तालिब बोलो जकीयुन, क्यों है जुमला, पहला मारिफा दूसरा नकीरा है, तो यहाँ है आ जाएगा, इंग्लिश का इज आ जाएगा, द स्टूडेंट इज स्मार्ट। पक्का हो गया। चार चीजें क्या क्या होना बोलो, मुब्तदा में चार चीजें क्या क्या होना, मुब्तदा मारिफा हो, मुब्तदा रफा हो, बाकी कुछ भी रह सकता हो, एक रह सकता, दो रह सकता, तीन रह सकता, मुजक्कर रह सकता, मुअन्नस रह सकता। दो कंपल्सरी चीजें क्या क्या, मारिफा हो रफा हो। खबर क्या होना भाई, नकीरा हो रफा, खलास, बाकी जैसा रहेगा उन्हें वैसा बता सकते हैं।
माहिर है, एक्सपर्ट है। हाँ, अब यहां पर मुब्तदा मुअन्नस है तो उसकी खबर भी मुअन्नस बन गई। बाकी तो सब ओके, ठीक है, पढ़िए। कातिबो, राइटर, राइटर। अल कातिबो मशहूर। देखो पहले चेक करो, मारिफा नकीरा मारिफ तो है दादा, राइटर है फेमस। मशहूर अब लिखो अल कातिबतो, मुअन्नस हो गई, मशहूरतुन, जींस उसके मुताबिक पीछे, नंबर मुताबिक पीछे, ओके है। हाँ, इल्म नूर है, इल्म है नूर। हाँ, ये पढ़ो। हाँ, द रोड इज लॉ। आज मैं खाली तारुफ करा रहा हूं आपका, ये जब पढ़ेंगे, जब बहुत पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी आप समझ जाओ, क्योंकि इसके अंदर जो है धीरे धीरे क्या आने वाला है, मुल्क कभी ये आने वाला है, कौन सा मुल्क कभी जारी आएगा। ये पढ़िए, अल खमीसु वसीकुन, द शर्ट इज डर्टी, नजीफुन क्लीन, अल कल्बु अमीनुन, द डॉग इज फेथफुल। पढ़ो, लंबा है। हाँ, द फूड इज डिलीशियस। चाय, चाय गरम है। हाँ, चाय, एक्चुअली चाय उर्दू और टी अरबी, चाय। द कोल्ड ड्रिंक इज कोल्ड। लाइब्रेरी इज, ऑफिस लाइब्रेरी इज नियर। हाँ, एयरपोर्ट इज नियर। हाँ, देखिए डिराइव, हाँ हाँ, अहमद क्या है, अहमद, हाँ अहमद पुलिस वाला है। हाँ चलो, समीर तिफलो, समीर बच्चा है। अस्मा लड़की है। हाँ, अस्मा ही पढ़ी। हाँ हाँ हाँ, कंप्यूटर प्रोग्रामर है। हाँ, प्रोग्रामर। हाँ हाँ हाँ, जर्नलिस्ट है। हाँ, इस्मा जर्नलिस्ट। लैला उम्मुल, लैला अम्मा है, लैला है अम्मी। मुस्तफा अब्दु अबुन, मुस्तफा अब्बा है। बाबा का नाम क्या है, मुस्तफा, अम्मा का नाम क्या है, लैला। मैं मोहम्मद हूँ। जमीर, कौन सा जमीर है, मुनफसिल, सेपरेट, स्टैंड अलोन। ये पढ़ो, मैं फातिमा हूं। ये तो दमायर सब मारिफा होते हैं, और महल्ली रफा है। मोहम्मद कौन, मोहम्मद तो कुछ रहता ही नहीं, वो खाली अकब का होगा, मुजाफ मुजाफ इलैह, या फिर निदा मुनादा कहीं नहीं। पढ़ो, हाँ ये आ गया, तालिबुन हो गया मौसूफ, ये सिफत। तो खबर में क्या आ गया, मुरक्कब। मुरक्कब कौन सी, तौसीफी।
तो ये हो गया मारिफा, और ये नकीरा जगह के हिसाब से, ठीक है। और ये क्या है, रफा, रफा जगह के हिसाब से, ये मारिफा, ये नकीरा। आएगा ना, अभी आएगा। बोलो अना, हाँ, सईदुन जदीदुन, मैं हूं बहुत खुश, एडवर्ब लगा दिए हाँ हाँ, जिद्दन, जिद्दन का मतलब वेरी, जिद्दन जिद्दा, वेरी गुड। हाउ, अभी खाली मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, देखते चलो। हाँ चलो, आई एम सॉरी, मैं माजरत चाह, आई एम सॉरी। हाँ, अना आसिफतुन, औरत बोल रही है। हाँ हाँ, है मेरे दोस्त, मैं बहुत सॉरी। थी, औरत है ना। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये लगा तो माई फ्रेंड रब्बी, बोलो अना आसिफो जिद्दन या सदीकती, इन्हें बोल रहा, वो औरत को बोल रहा, और उन्हें बोल रहा ना, अना, इन्हें बोल रही है ना, आसिफतुन जिद्दन या सदीकती, खैर वो हो जाएगा, ठीक है वो, हाँ ये पढ़ो, हाँ, अल उस्तादो अल जदीदो, नया प्रोफेसर हूं मैं, हाँ जदीद, हाँ मैं न्यू टीचर, हियर, होना बोले तो हियर, होना का बोले तो देयर। यहाँ पर उन्हें कॉलेज में खड़ा है, बोल रहा मैं एक नया टीचर हूँ भाई, होना इज हियर एडवर्ब, सर, ये पढ़ो, पी शरीकती कबीरती, लार्ज कंपनी, मैं एक इंजीनियर हूँ एक बड़ी कंपनी, हाँ, कंपनी जो है मोनस है ना। ये फी क्या है, शरीकतिन क्या है, ये मौसूफ है, और ये क्या है, कबीरतिन सिफत है। कंपनी कैसी है, बड़ी है, फी के वजह से जर आया, इन्हें जैसा रहेगा इन्हें वैसा रहेगा, मैच करता, आगे समझ में। तो यहां से बोलो अना मोहन देशन, बोलो मैं हूं क्या है, इंजीनियर। अब यहां से यहां तक क्या है भाई, मुरक्कबे जारी और मुरक्कबे तौसीफी, तो ये है मुताल्लिक से खबर, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट मोहनदिस, बोलो। उन्हें बोला मैं हूं इंजीनियर, तो क्या बोले हमने, कहाँ है तू, नहीं, हाँ मैं हूं एक बड़ी कंपनी, तो इसको क्या बोलेंगे, मुताल्लिक बिल खबर, है समझ में। तो ये कौन है, दरअसल फी कौन है, हर्जर, तो हर्जर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, समझे, शाबाश। तो यहां पढ़ो अना, अनल उस्ताद, मैं हूं एक उस्ताद, अना अल उस्ताद, बोलो, हाँ हाँ, मैं एक्चुअली क्या हो रहा, अल आ गया तो बनेगा क्या, अल आया तो क्या बनता, मुरक्कब बन जाता। हाँ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, उस्तादुन, अनल उस्तादु क्या बनेगा, मैं नया टीचर, बोलो मैं नया टीचर यहाँ, हाँ, तो पूरा बदल जाएगा, अना, बोलो, उस्ता उस्ताजुन, उस्ताजुन बनेगा, और जदीदुन होना बनेगा, ये तो पूरी फ्रेज बन जाएगी। ये पढ़ो, आप बराबर आ गए, अंता बोले तो तू, नकीरा तालिबुन, एक स्टूडेंट है, कैसा स्टूडेंट, नया,
तो पढ़ो। तू है एक नया स्टूडेंट, अंती तालिबतुल जदीदतुन, तू है एक नई तालिबा। अंदाजा लग रहा ना आपको? यही बताना था मैं, वो खाली आपको आज जो है इसकी खुशबू सुंघा रहा था। ये कितने फीसद है जुमले कुरान में? 35%। ये भी आना जरूरी। चलो क्या हम मुहर्रिसूना, ऐसा करो, वो सब है इंजीनियरा। आ गया? ये पढ़ो, हुन्ना, हाँ वो है खूबसूरत, वो सब देखो खूबसूरत है। हाँ ये पढ़ो, दो दो डॉक्टरनियां, हाँ दोनों मौजूद है। मैच करना पड़ता नंबर में। आ गया? टाइम भी मैच नहीं होगा। ये हो गया मारिफा, ये नकीरा, खाली अलग हो जाता। दोनों रफा हालत में, आनी आनी आई नहीं रहता तो नहीं मैच होता। यहां पर अत्तिबाओ मौजूद होना, अब जमा हो गए। आ गया? ये तो जमा तो होना आ गया। बहुत सारे डॉक्टर मौजूद है। हाँ नहनो मुतफाइलूना, वी आर ऑप्टिमिस्टिक। हाँ ये पढ़ो, हम करीबूना मिनल बैती, ये जुमला आपने कहा सुनो गर्व, वो सब मर्द लोग क्या है? करीब है। हाँ किससे करीब है? घर से करीब है। तो करीब पे जो खबर खत्म हो रही है, और ये मिन क्या है? मुतालिक का खबर, मजीद मालूमात किसके? खबर के। और कौन है? मुरक्कब है, मुरक्कब जारी है। ये आइडियल सेंटेंस, ऐसे जुमले पूरे कुरान में। हाँ मुतालिक का खबर। इंग्लिश बोलो, होम सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आ गया? पढ़ो। हाँ अहम है, दे आर इंपॉर्टेंट, वो मर्द लोग इंपॉर्टेंट है। चलो ये पढ़ो, हम युसाफिरूना इला मिस्र, बोलो हम वो सब है, मुसाफिर कहाँ पे है? ट्रैवलर्स, मिस्र के। मिस मसरी बोलते ना, मसरी बोलते, मिस्र को मसर बोलते। चलो वोकैबुलरी क्या क्या सीखे हमने? अल अर्द वाले जमीन, अच्छा असमान आसमान, बाब यानी दरवाजा, नाफिजातुन यानी विंडो, कल बोला था। हाँ बैतुल यानी घर, हाँ हदीकत बोल तो गार्डन, शजरतन बोल तो ट्री, और गुरफतुन यानी कमरा, सैयारतुन का, सितारुन ट्रेन, हाफिलतु बस, दर्राजतुन बाइसिकल, हाँ कल्बुन कुत्ता, हित्तुन कैट, रजुल आदमी, और फील हत्ती, सैयारतुन का, सितारुन ट्रेन। आ गया? ये हो गया ना, रिपीट हो गया। पढ़ो, चेक करो, मारिफा नकीरा, रफा रफा, बनाओ जुमला। दरवाजा है, पता मत तो डायरेक्ट है, खुला है। हाँ दरवाजा है खुला हुआ। अगला अल बाबल मुगलक़, दरवाजा है बंद। हाँ आगे बढ़ो। हाँ 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 अल बाबो बड़ा है छोटा है? सवाल बनाओ, पढ़ो।
नहीं सवाल वो आसान है क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन है एक्चुअली जो है ना आपको देना है ये होमवर्क आपको बना के पढ़ो। हाँ ये क्या है कंप्लीट सेंटेंस है। और रजलो तभी लोग शाबुन है कमजोर लंबा आदमी है लंबा बड़ा उजोजुन 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 का कुछ नहीं आती। चलिए बूढ़ा होगा जी गोबर वाला। हाँ पढ़ो अलमाओ। हाँ दाफियो पानी कैसा है मैला। हाँ चलो ठंडा अशायो बारिद ठंडी है अलमाओ बारद गरम। पढ़ो तुफा हो फुलवन सेब है मीठा फुलवन हलवा अपन हलवा हलवा। हाँ हाँ मर्रतुन। हाँ मुर्रतुन मुर्रतुन का मतलब पता जाती है। हाँ खराब होना सड़ा हुआ खराब हुआ। हाँ हाँ और बुर्तखालो ऑरेंज संतरा। हाँ और बुर्तखालो हुलवतुन मीठा है। तुफातुन हामिदतुन खट्टा है। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे कल देखेंगे। अब हाफिज साहब को देंगे तो हमने क्यों सीखे भाई जर के साथ में इसम क्यों सीखे। उन्हें तकरीबन जुमलों में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने को था पीछे बैठ के। देखो हामिद ने मारा कहा मारा बताने का जो है ना हर जर का इस्तेमाल करेंगे है समझ में। हाँ अब मैं पूछूंगा तुम कहां से है बोलो वेयर आर यू फ्रॉम। मीन आईना आता बोलो आना। हाँ अना मिन हिंद मिन हिंद आ गया। हाँ ये मिनल हिंदी है क्या मिन हिंद भी आ सकता है जो तो प्रॉपर नाउन है अल्लाह लगाते नहीं। हाँ बोलो अना मिनल याबानी जापान से हो। हाँ अना मिनल सीनी चाइना से हो। अना मिन तुर्किया तुर्की से हो। ठीक है मिल क्यों लगा रहे अपन जॉब में आ रहा हूं। चलिए यहाँ रुकते हैं और कल वापस अपने मेन ट्रैक को वापस आते हैं। कहां पे आएंगे हर जर वालों को और पढ़ेंगे। ये तो हर जर हर जगह बंदा कलेक्ट करने वाला है। मुरक्कब बन के हर जगह एडिशनल एंसर्स देने वाला। तो हर जर को बहुत पढ़ना है। हर जर का जो मुरक्कब है वो बेहतरीन है। अभी उसको नहीं चलाई है क्लास एक बैठा क्लास लोगे ना करेंगे। तो इसके अंदर आज की पढ़ाई नहीं थी आज का खाली ओपनिंग था समझे ना। पर्दा उठाए खाली जुमला इसमिया बहुत बड़ा टॉपिक। ये अच्छा तरीके से पहले से आइडिया और रेगुलर स्टूडेंट्स को बहुत ठीक है ना। फिर वो स्प्राउटिंग छोटे छोटे पौधे निकलते पड़ा था कुछ शाम हो गया अपन बैठ ये पढ़ाने का तरीका ये स्टार्ट है सीजन के अंदर ये अमृत वो बोलते हैं कि आप उसकी प्रीवियस हम ही बच्ची बने और बच्चे को समझो स्कूल है क्या है कहां है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग पूरे आपके साथ साथ था सफर में जाएगा वो अच्छा है डरा ऐसा मानने
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ کل ہم نے ایک جملہ شروعات میں تعوذ کا لیے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آج شروعات کریں گے۔ کیا آواز آ رہی میری؟ جی سر جی سر آ رہی ہے۔ آ رہی ہے سر۔ نہیں ہے۔ آ رہی ہے سر، آ رہی آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں اسپیکر آن کیا ہے، ابھی آ رہی؟ کیا آپ کو سنا ہوا؟ آواز ٹیکنو کلیئر ہے؟ کسی کی بھی نہیں آ رہی آواز؟ وہ بند ہو گیا آ ہوگا۔ رہی ہے سر۔ سر بہت اچھے سے کلیئر آ رہی ہے آواز۔ جی جی آپ کی تو آواز سب کو آ رہی تھی۔ ہاں ابھی نہیں آ رہی بالکل بھی۔ آ رہی سر آواز؟ ان کو آ جی رہی آپ دونوں تو کی آج ہم آواز آ پڑھیں رہی گے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے مطابق اس کے اصول تھوڑے سے دیکھ لینا ہے۔ بسمی، با زیر بی، اور اس کے بعد ہے سین کے اوپر سکون جزم، اور میم زیر می، بسمی۔ با زیر بی ایک حرف ہے اور اسم ناؤن ہے، اسم ہے۔ اسم یعنی کہ ناؤن۔ اسم کے اندر تین حرف ہے۔ پہلا ہے الف نظر آ رہا، اور سین، اس کے بعد میم۔ تو اسم کے اندر یہ تین حروفوں میں یہ جو پہلا حرف ہے یہ ہے حمزۃ الوصل۔ حمزۃ الوصل، اس کے پہلے کوئی حرف آ جائے یا کوئی لفظ آ جائے اس سے ملا کے پڑھنے کے لیے یہ اسم کا جو حمزۃ الوصل ہے یہ ڈراپ ہو جاتا۔ اس وجہ سے با زیر بھی بسمی کے اندر حمزۃ الوصل ڈراپ ہو گیا، با زیر بھی ڈائریکٹ ملا کس سے؟ سین سے، بسمی۔ اس کے بعد ہے اللہ، یہ ایک نام ہے اللہ تعالی کا جس میں سب سے پہلا جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے اور لام ہے، اور اللہ کے نام کا پہلا لفظ وہ لام ہے، اور لام حروف شمسیہ میں سے ہے، اس وجہ سے یہ دونوں بھی حمزۃ الوصل اور لام ڈراپ ہو جائے گا۔ یہ میم زیر می کی حرکت ڈائریکٹ ملے گی لام سے، اور اللہ کے نام کے پہلے، اللہ کے نام کے پہلے والے لفظ کے نیچے اگر زیر ہے تو اللہ کا نام ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا، اور اگر پیش یا زبر ہے تو اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا منہ بھر کے، جیسے اللہ۔ اور یہاں پہ ہم پڑھیں گے بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ حاضر ہی، بسم اللہ ہی۔ اس کے بعد ہے الرحمانی، الرحمانی میں شروعات میں ہے حمزۃ الوصل اور لام، اور اس کا پہلا حرف جو ہے وہ را ہے، اور را حروف شمسیہ میں سے ہے، اس وجہ سے یہاں پہ بھی دونوں الف اور لام
حمزۃ الوصل اور لام دونوں بھی ڈراپ ہو جائیں گے. یہ حاضر ہی کی حرکت سے سیدھا را پہ ملیں گے. بسم اللہ، پھر را کے اوپر زبر، ہا ساکن، میم کھڑا زبر، ما نون زیر نی، پھر رحمانی، پھر اس کے بعد ہے الرحیمی. پھر سے الف لام سے شروعات ہو رہی ہے. پہلا حرف لیٹر جو ہے وہ حروف شمسیہ ہے، اس وجہ سے یہاں پہ بھی حمزۃ الوصل اور لام دونوں بھی ڈراپ ہو جائیں گے. اور را، یہ نون زیر نی ڈائریکٹ را سے ملیں گے، نر را. پھر ہا یا زیر ہی، یہ یا ساکن آیا، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے یہاں پہ یا مدہ کا قاعدہ ہو جائے گا. اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، الرحیم، میم زیر می. اب یہاں رکنا ہے تو آیت کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ دو زبر کے علاوہ جتنے بھی حرکات رہیں گے اس کو سکون سے بدل دیں گے. تو یہ میم کے اوپر نیچے جو زیر ہے یہ ساکن میں بدل جائے گا، تو یہ ہو جائے گا رحیم. اور پورا جملہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پورا جملہ ہو گیا. یہ تجوید کے مطابق اس کے اصول ہے. ابھی اس کو دیکھیں گے گرامر کے مطابق. گرامر اس کا کیا ہے؟ گرامر کے لیے ہر ایک لفظ کو الگ الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ بسمی. بازر بھی، یہ اسمی. بازر بی کے ساتھ ملا تو بازر بی کیا ہے؟ حرف ہے. اور کون سا حرف ہے؟ حرف جر. حرف جر. حرف جر کیا کرتا؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا. تو اس کے بعد آنے والا اسم خود اسم ہے، اور اس کی اعرابی حالت زیر، حالت جر ہے، یہ حرف جر کی وجہ سے. تو یہ ہو گیا اسم مجرور. اب یہ دونوں مل کے ایک مرکب بن گیا، حرف اور اسم دونوں مل کے ایک مرکب بن گیا. یہ مرکب کون سا مرکب بنا؟ مرکب اضافی، مرکب جاری. مرکب جاری بنا کیونکہ حرف جر کے ساتھ آیا. مرکب جاری کے جو دو جز ہے، پہلا والا حرف جر ہے، دوسرا اس میں مجرور ہے. تو پہلے والے کو بولیں گے جار، دوسرے والے کو بولیں گے مجرور. تو یہ ہو گیا بسمی کا گرامر کے مطابق. اور اس کے معنی کیا ہے؟ اسم یعنی نام. بازر بی کے معنی ہے کے ساتھ، تو نام کے ساتھ. اللہ ہی، اللہ کے اللہ کے نام کے ساتھ. یہ جو اللہ کا نام ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت جر ہے. یہ بازر بی کی وجہ سے ہی حالت جر میں ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ابھی معنی میں اگر غور کریں گے، اللہ کے، ہاں، اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے. بی بازر بی کے معنی ہے کے ساتھ. اور اللہ کے نام کا، کے، کی، یہ کیوں آ رہا؟ کوئی بتائیں گے؟ مضاف مضافی ہے، یہ ہے مرکب اضافی. اللہ کا نام حالت جر میں ہے، یہ ہے اسم. اسمی، اس کے نیچے صرف زیر ہے، نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، نہ الاسمی ہے نہ اسمن ہے. تو یہ ہے اسم خالی، اخف کیا ہوا معرفہ اسم. اور اس کے بعد والا جو نام آیا وہ اللہ ہی حالت جر میں آیا. تو اخف کیا ہوا اسم، اس کے بعد والا اسم جو حالت جر میں آتا، تو یہ دونوں مل کے ایک مرکب بن جاتے. اور اس مرکب کا نام کیا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. پہلا والا اسم یہ جو ہے مضاف، اور دوسرا مضاف الیہ.
تو دو مرکب آ گئے. بسمی کے اندر مرکب جاری اور اسم اللہ مرکب اضافی. اب اس کے معنی ہوئے اللہ کے نام کے ساتھ. اب اس کے بعد ہے الرحمانی. الرحمانی اسم معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ. معرفہ ہے. معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ الف لام کے ساتھ آیا اس وجہ سے. اس کے بعد واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ واحد ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مذکر. اعرابی حالت کیا ہے؟ جری. حالت جر ہے. تو یہ رحمانی حالت جر میں کیوں آیا؟ موصوف صفت کے اللہ پاک ہاں مرکب توصیفی کے مرکب ہے. توصیفی کی طرف سے. اچھا رحمان. ہاں رحمان کے معنی کیا ہے؟ مہربان جو لفظ ہے یہ جو معنی کے اعتبار سے دیکھ رہے یہ کچھ نام ہے یا صفت ہے؟ صفت صفت ہے. تو یہ صفت بیان کی جا رہی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ ہو گئے موصوف اور الرحمانی ہو گئی صفت. اب یہ دونوں مل کے ایک مرکب بنا. موصوف صفت مل کے مرکب توصیفی، مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب توصیفی. اس کے بعد ہے الرحیمی. پھر یہ معرفہ اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اعرابی اعتبار سے حالت جر میں ہے اور معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ صفت ہے. تو یہ ایک صفت، یہ دوسری صفت، اور یہ دونوں صفات کس کی بیان کی جا رہی؟ اللہ کی. اور مرکب توصیفی کا ایک اصول ہے جیسا موصوف چاہیے ہے اسی طریقے سے اس کی صفت بھی ہونا ضروری ہے. DING میں یعنی کہ موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہونا. موصوف اعرابی اعتبار سے حالت رفع ہو، جر ہو، نصب ہو، جو بھی ہو تو صفت بھی اس کی حالت رفع، نصب، جر سیم میچ رہیں گی. اور اگر واحد ہے تو واحد، مذکر ہے تو مذکر. تو یہ پہلا والا اسم بسمی یہ مرکب جاری ہے اور اسم اللہ یہ مرکب اضافی ہے اور یہ اللہ، الرحمن، الرحیم یہ تینوں مل کے مرکب توصیفی ہے. تین مرکبات مل کر ایک جملہ بنا، سینٹینس بنا. اب یہاں پہ معنی کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کے نام کے ساتھ مہربان رحم کرنے والا. جو ہے مہربان جو ہے ہاں نکیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، نکیرہ کچھ بھی نہیں. اب اس کو جملہ بنانے کے لیے گرامر والوں نے اس کے پیچھے ایک فعل کو محذوف کر دیے. شروع کرتا ہوں، اقرأو. اقرأو کے معنی ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان، جو رحم کرنے والا ہے. تو بہت سارے مرکب مل کے ایک سینٹینس بنا، ایک جملہ بن گیا جس میں سے ہم نے مرکبات دیکھ لیے. پہلا ہے مرکب جاری، پھر اس کے بعد مرکب اضافی، پھر مرکب توصیفی. ہاں تو معنی میں جو ہم ترجمہ کرتے شروع کرتا ہوں وہ اس وجہ سے ہے کہ پیچھے ایک حرف، ایک فعل ہے جو حذف کیا ہوا ہے. اب اس کے بعد پھر ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. اب یہ تو ہم شروعات سے پڑھتے. جی سر یہ جملہ ہے کیا وہ؟ کون سا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ ہی بولیے جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں دکھ رہا نا سر، جملہ نہیں دکھ رہا. ہاں اگر یہاں پہ یہ جتنا لفظ لکھے ہوئے ہیں صرف اتنا ہی ہم دیکھیں گے تو یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہے.
اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بس یہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہے. اگر ہم بولیں گے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ تو پھر کمپلیٹ جملہ ہو جاتا ہے. تو واپس آئیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد اس کی شروعات ہو رہی الحمد سے. اب الحمد ہے تو ہر ایک لفظ کو سب سے پہلے ہم الگ الگ کر دیں گے. الحمد الگ ہے, للہ الگ ہے, ربی الگ ہے, عالمین الگ ہے, الرحمن الگ ہے, الرحیم الگ ہے. اس کے بعد مالک, پھر یوم, پھر دین. اس میں سے مجھے بتائیے اسم کون سے ہیں؟ الحمد الحمد اسم ہے. کیوں اسم ہے یہ؟ الف لام سے شروع. الف لام لگا ہوا ہے. اس کے بعد اور کون سا اسم ہے؟ للہ للہ, یہ بھی اسم ہے. اور یہ کون سا اسم ہے؟ اس میں علم ہے, معرفہ اسم ہے. اس کے بعد رب, یہ بھی اسم ہے. اور یہ کون سا اسم ہے؟ خف کیا ہوا, مضاف ہے. اس کے بعد العالمین, یہ بھی اسم ہے, اسم ہے. الرحمن, یہ بھی اسم ہے اور معرفہ اسم ہے. اس کے بعد الرحیم, یہ بھی اسم ہے. مالک, یہ بھی اسم ہے. یوم, یوم بھی اس میں ہے. یہ بھی اسم ہے. الدین, اس میں یہ بھی اسم ہے کیونکہ الف لام کے ساتھ ہے. پورے اسم آ گئے, اسم 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 اسم, یہ بھی اسم, یہ بھی اسم, یہ بھی اسم. اب یہ پورے اسم ہے. اب ان کا آپس میں کنیکشن کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم ہر ایک اسم کو ڈی آئی این جی میں دیکھیں گے. معرفہ, نکیرہ, اعرابی حالت, واحد, تثنیہ, جمع, مذکر, مؤنث. ٹھیک ہے. الحمد یہ اسم ہے. کون سا اسم ہے؟ معرفہ اسم ہے. واحد ہے, معرب باللام ہے. واحد ہے, مذکر ہے, حالت رفع میں ہے. یہ آ گیا ڈی آئی این جی میں. للہ, تمہارا اسم ہے. اسم ہے, مذکر ہے حالت اور واحد جر میں ہے. جر ہے. حالت جر میں ہے, واحد ہے. حالت جر میں ہے تو حالت جر میں کیوں ہے؟ لام کی وجہ سے. للہ, لام زیر لی کی وجہ سے. کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے آ گیا لام زیر لی. لام زیر لی جو ہے وہ حرف جر ہے. جر ہے. اب یہ دونوں مل کے کیا بنا؟ حرف اور اسم مل کے مرکب بنا. مرکب جاری, ماشاء اللہ. جی, تو یہ پہلا اسم ہو گیا. اس کے بعد یہ آ گیا مرکب. اب اس کے بعد والا جو اسم ہے اس کو ڈی آئی این جی میں دیکھنا ہے. معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ اخف شدہ ہے. اس میں مضاف ہے, اخف کیا ہوا ہے. اس کے بعد اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت جر میں ہے. واحد ہے, تثنیہ, جمع, واحد ہے. اس کے بعد مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. تو اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد العالمین, معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ معرفہ ہے. اعرابی حالت کیا ہے؟ نصب ہے. یہ جمع ہے. جر ہے. العالمین ہے تو یہ اعرابی اعتبار سے حالت نصب اور جر دونوں بھی سیم ہے اس کی. اور اس کی حالت رفع کیا ہو جائیں گی؟ العالمون. العالمون. اور اس کی حالت رفع, نصب اور جر العالمین. اب یہ پہچاننا ہے کہ یہ حالت جر ہے کہ یہ حالت نصب ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا جملے میں. تو اب یہاں دیکھ کے پہچانو کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے. جر ہے کیونکہ وہ کی وجہ سے سب جر ہوتے جا رہا ہے. جر ہے.
रब्बिल आलमीन, ये रब की वजह से अखफ किया हुआ इसमें, उसके बाद आलमीन हालत जर में है, ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह। उसके बाद अर रहमानी, यहाँ पे देखे थे हमने, वाहिद है, मुजक्कर है, एराबी एतबार से हालत जर में है, और मारिफा है कि नकीरा है? मारिफा है। अर रहीमी मारिफा है, हालत जर में है, वाहिद है, मुजक्कर है। मालिकी मारिफा है कि नकीरा है? मारिफा मारिफा है। क्यों मारिफा है? अखफ किया मुअन्नस की हुआ कोई है, निशानी इसमें नहीं है। मुजाफ है जी। उसके बाद एराबी एतबार से हालत कौन सी है? जर है सर, जर हालत जर जर में है। जर वाहिद है, तस्निया है, जमा है? वाहिद वाहिद है। वाहिद है, मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है, मुजक्कर है। उसके बाद यौमी ये भी मारिफा है कि अखफ नकीरा है? मारिफा मारिफा है। है, क्यों मारिफा है? क्योंकि मुजाफ है, अखफ किया हुआ है इसमें। उसके बाद हालत एराब कौन सी है? जर, हालत जर में है। जर उसके बाद देखना है वाहिद है, तस्निया जमा है? वाहिद है। और मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर मुजक्कर है। अद्दीनी मारिफा है नकीरा है? मारिफा है। क्यों मारिफा है? अलिफ लाम की वजह से, मुअर्रब बिल लाम है। एराबी हालत क्या है? जर है। हालत है जर में है। वाहिद है, तस्निया है, जमा है? वाहिद वाहिद है। मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुजक्कर है। ये पूरे के पूरे इस्म को अल्हम्दुलिल्लाह हमने DING में देख लिए। अब ये देखना है कि इन तमाम की एराबी हालत हालत जर में क्यों हुई, और इनका किसी दूसरे लफ्ज से कोई कनेक्शन है क्या। अब असल देखना है, ये पहला है अल्हम्दु, दूसरा है लिल्लाही। अब इन दोनों का कोई ताल्लुक है क्या आपस में? अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाही एक मुरक्कब है, मुरक्कब जारी, और अल्हम्दु से मिलके लिल्लाही, ये कोई मुरक्कब बन रहा क्या? नहीं सर, नहीं बन रहा। हाफिज का काम क्या होगा? नहीं मैंने करो, मैंने करो, समझे हो, मैंने तो अलग तो बोले तो कमाल तारीफ है जी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? हाँ आवाज नहीं आ रही, डिस्टर्बेंस आ रहा। अच्छा अच्छा। डिस्टर्ब हो रहा है। अल्हम्दु लिल्लाही, ये दोनों मिलके कोई मुरक्कब बन रहा क्या? नहीं नहीं बन रहा। बन रहा। ये मारिफा है, ये भी तो मारिफा है, ये नकीरा नहीं है। मुरक्कब है ना सर, मगर वो कौन लिल्लाही सा मुरक्कब? ये मुरक्कब आ गया। चलो ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब वापस हम चलेंगे। रब्बी, रब्बी अल आलमीना, ये दोनों मिलके कोई मुरक्कब बन रहा क्या? हाँ ना सर, मुरक्कब इजाफी। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। नहीं, ये भी मारिफा, ये भी मारिफा। चलिए, ये है रब्बी, और उसके बाद है अल आलमीना। ये दोनों मिलके, मेरा सवाल ये है कि ये दोनों मिलके कोई मुरक्कब बन रहा क्या? बन रहा ना सर। कौन सा मुरक्कब? मुरक्कब इजाफी। मुजाफ, इजाफी अलैहि। मुजाफ इलैहि, इजाफी अलैहि। इलैहि। ये है अलैहि और ये है इलैहि, दोनों में फर्क है। अच्छा, और ये है अखफ किया हुआ इस्म, ठीक है। अखफ किया हुआ इस्म यानी कि मुजाफ,
اور مضاف کس کے ساتھ آتا؟ مضاف الیہ کے ساتھ. اور جب بھی مضاف آتا تو اس کے بعد والا جو اسم ہوتا وہ حالت جر میں ہوتا. اور یہ العالمین، اچھا اس کے معنی کیا ہے؟ عالموں نصب اور جر کے لیے آتا، لیکن یہاں پہ مضاف کے بعد آ رہا تو حالت جر میں ہے. اچھا اس کے معنی کیا ہے؟ تمام عالم کا رب. تمام عالم کا رب. رب. اور کا کی کے کون سے مرکب میں آتا؟ مرکب مرکب اضافی. میں. تو یہ اخف کیا ہوا اسم ہے، اور اس کے بعد یہ العالمین مضاف الیہ ہے، یہ حالت جر میں ہے. ہاں. اس وجہ سے یہ دونوں مل کے ایک مرکب بنا، اور یہ مرکب کا نام ہے مرکب اضافی، یعنی مالک اور ملکیت کا رشتہ. اس کے بعد ہے الرحمانی، الرحیمی. یہ دونوں مل کے کوئی مرکب بن رہے کیا؟ جی بن رہا. کون سا مرکب؟ توصیفی. مرکب توصیفی. صفت. توصیفی. سر یہ تو کیسا مرکب توصیفی ہو رہا؟ جی مرکب توصیفی کیسا ہو رہا؟ دونوں کے یہ بھی صفت ہے اور یہ بھی صفت ہے. ہاں، تو یہ دونوں مل کے مرکب نہیں بن رہے، یہ دونوں خود ایک صفت ہے. یہ بھی صفت ہے اور یہ بھی صفت ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. اللہ کی. اللہ کی. الرحمانی، الرحیمی، یہ دونوں مل کے صفت بن رہے کس کی؟ اللہ کی. اس کے بعد مالکی یوم الدین. اب یہ مرکب بن رہا کیا؟ مالکی اور یومی مرکب بن رہا کیا؟ یوم نہیں بن رہا تھا. یوم الدین ہے. یہ مالکی نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، اضافی. اخف کیا ہوا ہے. اور اس کے اخف کیا ہوا اسم اس کے بعد اگر آیا تو حالت جر میں آتا. تو مالکی یومی، یہ دونوں مل کے ایک مرکب بنا. یہ دونوں مل کے ایک مرکب بنا، یعنی کہ دن کا مالک. کا. اور اس کے بعد یوم الدینی، یہ اخف کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد والا اسم حالت جر میں ہے. تو یہ دونوں مل کے ایک مرکب بن رہے. یہ دن یعنی کہ آخرت کا پکڑ لیں گے. ابھی آخرت کے دن کا مالک، یہ مضاف، یہ مضاف الیہ، یہ مضاف پلس یہ مضاف الیہ. تو ڈبے کے اندر ڈبہ ہے. یہ گھڑی گھڑی پریکٹس کرو پورے مرکبات سیدھے ہوئے. تو مرکبات کون سے ملے؟ مضاف اور جاری. دونوں مل کر مرکب بن سکتا. جی مضاف اور مضاف دونوں مل کر مرکب بن سکتا. مضاف اور مضاف مالکی بھی مضاف ہے. ہاں مالکی مضاف ہے اور یومی مضاف الیہ ہے، اور یہ خود بھی مضاف ہے اور انہیں مضاف الیہ ہے. مطلب مضاف ڈبل رول کر رہا، انہیں صرف مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. اس کا مضاف الیہ انہیں ہے اور انہیں مضاف اس کا ہے. ڈبل مضاف الیہ ہے، ڈبل اضافت ہے. یعنی کہ دو جگہ کا کے مانیں گے، یہاں پہ بھی کا یہاں پہ بھی کا. آخرت کے دن کا مالک. اچھا. پہلے لفظ الگ الگ ہم نے نکال لیے، اسم پہچان لیے. اس کے بعد پھر مرکبات کون سے ہیں نکال دیے. اب فائنل ہے کہ جملہ کہاں سے کہاں تک ہو رہا. یہ مرکبات مل کے آپس میں کوئی ایک سینٹینس بن رہا کیا، جملہ بن رہا کیا، وہ دیکھنا ہے ہم کو. ٹھیک ہے. الحمد للہ،
سب سے پہلے جملے کی شروعات یہاں سے ہو رہی، ٹھیک ہے، یہ شروعات یہاں سے ہو رہی تو اسم سے ہو رہی، اب اسم سے ہو رہی تو وہ ہو گیا جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ کے دو اہم جز ہے، یہ یاد رکھنا ہے، جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہے جو اہم ہیں. پہلا ہے جہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی اس کو بولیں گے مبتدا، اور جس کے بارے میں بات بتائی جا رہی، جس کے بارے میں اطلاع دی جا رہی اس کو بولیں گے خبر. خبر. جملہ اسمیہ کے دو اہم جز ہے، پہلا ہے مبتدا اور دوسرا ہے خبر. اب خبر کے متعلق مزید معلومات دینے کا کام متعلق خبر. فیضان تو تین ہو گئے، دو اہم ہیں، یہ ایک ایکسٹرا ہے. مبتدا خبر، جملہ اسمیہ کے دو اہم جز، پہلا ہے مبتدا اور دوسرا ہے خبر، اور تیسرا جو آپشنل ہے وہ متعلق ہے خبر، یعنی کہ خبر کے بارے میں مزید معلومات دی جاتی. اور یہ جو متعلق خبر ہے یہ ہمیشہ آتا حرف جر کے ساتھ. کس کے ساتھ آتا؟ حرف جر کے ساتھ. بس اتنا ہی سبق آج یاد رکھیے. جملہ اسمیہ کے دو اہم جز ہیں، پہلا ہے مبتدا، دوسرا ہے خبر، اور تیسرا جو آتا اس کے بارے میں معلومات دی جاتی وہ ہے متعلق خبر. اور متعلق خبر آتا حرف جر کے ساتھ. اور مبتدا میں ہمیشہ اسم ہوتا، واحد بھی ہو سکتا مرکب بھی ہو سکتا. خبر کے اندر بھی اسم ہوتا، واحد بھی ہو سکتا مرکب بھی ہو سکتا، یا کوئی اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا. تو یہ الحمد اس سے شروعات ہو رہی ہے، یہ اسم آ گیا اور اس کے بعد للہ ہی ایک مرکب آ گیا. تو معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو تمام تعریفیں ہے اللہ کے لیے. تو یہ ہو گیا مبتدا اور یہ ہو گئی اس کی خبر، الحمد للہ. ابھی اتنا کافی ہے، الحمد للہ. یہ ہو گیا مبتدا اور یہ ہو گئی اس کی خبر. اب آگے کا جو جملہ پورے الفاظ جو آ رہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تمام کے تمام صفات ہے، یہ کوالٹیز ہے، یہ پورے صفات بیان کی جا رہی کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. اس وجہ سے تمام کے تمام صفات حالت جر میں ہیں. اچھا. پہلی صفت ہو گئی رب العالمین، عالمین کا رب، یہ پہلی کوالٹی ہے. اب ربی مضاف دیکھنا ہے، ربی حالت جر میں ہے، اللہ حالت جر میں ہے نام کے اعتبار سے، اور ربی بھی حالت جر میں ہے، عالمین حالت جر میں ہے رب کی وجہ سے. تو رب العالمین پہلی کوالٹی ہو گئی. الرحمن مہربان، یہ دوسری کوالٹی ہو گئی، یہ بھی حالت جر میں ہے. الرحیم تیسری کوالٹی، تیسری صفت حالت جر میں ہے. اس کے بعد مالکی، مالک ہے حالت جر میں ہے. کس چیز کا مالک ہے؟ یوم الدین کا مالک ہے. یہ تمام کے تمام صفات ہے، وہ تمام صفات بیان کی جا رہی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. تو جملہ ہو جائے گا تمام تعریفیں اور شکر تمام عالموں کے رب، جو مہربان ہے، جو رحیم ہے رحم کرنے والا ہے، جو آخرت کے دن کا مالک اللہ کے لیے ہے. لوگوں کے اللہ کے بارے میں. تو آج کا سبق ہے مرکبات. سب سے پہلے مرکب دو قسم کا ہے، ایک مرکب تام اور مرکب ناقص. مرکب تام کا دوسرا نام جملہ ہے، اور جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ فعلیہ اور دوسرا جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہیں گے جس کی شروعات اسم سے ہو رہی. اور جملہ اسمیہ کے دو اہم جز ہے، دو اہم پارٹ ہے، مبتدا اور
خبر، اور خبر کے بارے میں جو مزید معلومات دی جاتی اس کو بولیں گے متعلق خبر، اور متعلق خبر آتی حرف جر کے ساتھ۔ یہ آج کی کلاس کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوالات ہے آپ کے تو کل کی کلاس میں آپ سوال لے کے آئیے اور پوچھیے۔ آج یہاں پہ رکیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ وعلیکم خیر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے اس لیے پڑھائی ہے